Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah, this is a practice session for the Nazm al Rahbiya in the Ilmul Mawaris or Ilmul Miras, and we'll try to do some examples and try to give shares to the inheritors because Ilmul Miras is all about application. Ilmul Miras is all about application. So, uh, the first exercise is Al Warithun min al Rijali wan Nisai. पहली एक्सरसाइज जो है वो वरसा के और ताल्लुक़ से है, वरसा जो है उनके ताल्लुक़ से है मर्द और औरतों में से. सो व्हाट वी हैव टू डू इज़ वी हैव टू पुट अ टिक मार्क अगेंस्ट all those we have to put a tick mark against all those uh, who are inheritors and a cross mark against those who do not inherit. मेरी आवाज़ नहीं आ रही है? Am I not audible? Log out and log in then. Okay, so the first exercise is you have to put a tick mark if you have to put a tick mark if a particular inheritor inherits or a particular member inherits from the list, and if it doesn't then put a cross in front of it. ठीक है जी. तो first one, ibn is the son, beta. Does he inherit or he does not inherit? So he inherits. Okay, so because he inherits, so we put a tick mark, inherits. Bint, daughter, inherits. Okay, we studied 15 male inheritors and 10 female inheritors. Okay, 15 male and 10 female inheritors we studied. So son is from amongst them. So you should be able to develop the list of inheritors completely. आप लोगों को वो लिस्ट डेवलप करना आना चाहिए. जो मेल और फीमेल इनहेरिटर्स की लिस्ट है वो आपको डेवलप करना आना चाहिए. You should be able to develop it. How to develop it? Bunuwa, Ubuwa, Ukhuwa, and Umuma. Okay, remember this. Bunuwa, Ubuwa, Ukhuwa, Umuma. Bunuwa, you have sons and grandsons. बुनुआ में बेटे और पोते पड़पोते सब आ गए उसमें. मेल फीमेल दोनों आ गए, बेटा बेटी, पोता पोती और इन नज़लू कितने भी वो नीचे चले जाएं. So Bunua includes sons and daughters, male, female both, and then the grandsons and granddaughters and great grandsons and great granddaughters, and all of them, they fall into the category of Bunua. These are also known as Furu. They are also known as Furu, the branches, because they are the ones, they are the result of the Usul. They are the result of the Usul. So they are known as Furu. They are branches. Usul are the roots and the trees. They are like the ancestors or the ascendants, while the Bunua are the descendants. They are the Furu or the branches. So Bunua includes both male, female, sons, daughters, grandson, and granddaughters. Then you have Ubua. In Ubua also you have males and females both. Ubua, males and females both. So you have, or you can call it as Usul also. This is Furu, this is Usul. So here you have males also and females also. In males you have father, grandfather, great grandfather, go up as high as you can go. So father, grandfather, बाप, दादा, ये सारे के सारे. Then you have females. In the females you have grandmothers, mothers and grandmothers. Here you have fathers and grandfathers. Here you have mothers and grandmothers. So you have mother. Then in grandmothers you have paternal grandmother, maternal grandmother, and great grandmother, both from the पैटर्नल एंड द मैटरनल साइड. ठीक है. उबुआ या उसूल में मुदक्कर मुअन्नस दोनों होते हैं. मुदक्कर में बाप दादा परदादा ऊपर की तरफ, और
मुअन्नस में माँ और नानी, दादी, परदादी, इसी तरह से परनानी, और ऊपर चलते चले जाएं, ये सब के सब उसूल में या वुआ में आते हैं. देन वी हैव उखुआ. उखुआ ऑल्सो वी हैव मेल एंड फीमेल्स inheritors. Okay, ukhua also you have males and female inheritors. Males, you have all kinds of brothers. Okay, real brother, you also call it as full brother. Then you have half brother, consanguine brother. Then you have maternal or uterine brother. And then you have sons of the full brother and the consanguine or the half brother. Sons only, sons of the full brother and the consanguine brothers. In the females, you have all kinds of sisters: full sister, consanguine sister, uterine sister. उखुआ में आपके पास, जिन्हें हम हवाशी भी कहते हैं, या उखुआ और उमुमा को हम हवाशी भी कहते हैं. हवाशी में आपके पास मुज़क्कर और मुअन्नस में इनहेरिटर्स हैं, वारिसीन हैं. मुअन्नस में आपके पास जो मुज़क्कर हैं, मुज़क्कर में आपके पास भाई हैं सारे, जितने भी किस्म के भाई होते हैं, यानी सगे भाई, बाप शरीक भाई, माँ शरीक भाई. उसके बाद बाप शरीक, उसके बाद सगे भाई और बाप शरीक भाइयों के बेटे, ये वारिस बनते हैं. मुअन्नस में 3 किस्म की बहनें हैं, बस वो वारिस बनती हैं, इनके बच्चे वारिस नहीं बनते हैं. तो सगी बहन, बाप शरीक बहन, माँ शरीक बहन, ये 3, तो ये वारिस बनते हैं. उसके बाद नाउ वी हैव उमूमा, विच इज़ द ग्रुप ऑफ अंकल्स. दिस इज द ग्रुप रिलेटेड टू अंकल्स. Uncles only you have mudakkar. There is no muannas here. You don't have any female inheritors from the group of umuma. You have only mudakkar. You have males only. Males, you have two types of uncles. You have full uncle. Uh, you have full uncle. You have half uncle. Okay. So you have real uncle. You have paternal uncle or consanguine uncle, and then you have sons of these two uncles. And there are no female inheritors in the umuma. Okay, so in total, if you will count them, and then from the wala, because wala, on the grounds of wala also, there are the mu'tiq and the mu'tiqa, they become the inheritors. So you have mu'tiq amongst the female, amongst the male, and mu'tiqa amongst the female, who become inheritors. So this is how 15 plus 10, it is 25. Now in this list, if you see, there are like close to 52 names here. We have to see which of them are going to become inheritors and which of them are not. Okay, ibn, son, inherits from the bunua. Bint is also from the bunua, or you can call it as furu. So you have, and thus one or two more inheritors which we forgot is from the zawjain, husband and the wife. Zawjain, husband and the wife, they are also inheritors which we forgot. Okay, so husband from muzakkar, and this wife from the muannas. So ibn is inheritor, bint inherits from the furu, ibnu ibnin grandson, son of the son, grandson inherits from the furu or bunua or furu. You can call it as bunua or furu right now. Then you have bintu ibn, daughter of the son of the daughter, or daughter of the son. You can call it as daughter of the son, or son's daughter, of the son or son's daughter. She is granddaughter. She also inherits from the furu only or bunua only. Then ibnu bint, son of the daughter. He is not the inheritor. Son of the daughter does not inherit. Okay, she is from this female. She does. This son does not inherit. Then you have bintu bint. She also does not inherit. Daughter of daughter does not inherit. Only from the sons. Then you have great grandson inherits. As long as they are only males, they all inherit. Bintu ibnu ibni, bintu ibni ibni. This also inherits. She is a great granddaughter. Okay, great granddaughter. Then ibnu bint, she does not inherit. This boy will not inherit, this male, because he is from the daughter. From the daughter. So he will not inherit. Then you have ibnu binti bint. She will. This son will also not inherit. Okay, this son will also, why? Because she is from the, he is from the daughter. So he will not inherit. Then bint, she will not inherit. She is again from the daughter.
Okay, and we studied earlier that only from the males, grandsons and great grandsons, through the males only they will inherit. Father inherits. Abul Ab, grandfather, inherits. Okay, with the conditions, but they are inheritors, so they are from the Warisin. Abul he is the father of the mother, which means maternal grandfather does not inherit. Nana, Nana does not inherit. Maternal grandfather does not inherit. Then you have Abil Ab, inherits. Great grandfather, Pardada, inherits. Ab Ummil which means father of mother does not inherit. Okay, he is like Nana only. This is Nani, and Nani's father, you can call it as Parnana, does not inherit. Okay, then Abu Amil Ab, Abu Ummil Ab does not inherit. The rule is that whenever a female comes between two males, then this male does not inherit. We studied this. दो मर्दों के बीच में एक औरत आ जाए तो फिर ये मर्द वारिस नहीं बनता है. अब उम्मिल अब. Then you have mother inherits. Then you have ummul maternal grandmother nani inherits. Then you have ummul ab, paternal grandmother dadi inherits. You have abil ab, pardadi, dada ki ma. She is the mother of the grandfather. She inherits. Then you have abil ab. She also in a pardadi. Okay, great great grandmother. She also inherits from the paternal side. Abil Ab, she does not inherit. Again, another qaida. If a man also comes in between two females, sandwiched between two females, then this female does not inherit. She will not inherit. Shaqiq, real brother, inherits, from the Hawashi, from the Ukhuwa. Real brother inherits. This is half brother, Li Ab, or the consanguine brother, inherits. Then you have uterine brother, Li Uterine brother, Li inherits. Ma Sharik Bhai. Then you have Ibn Akh Shaqiq, son of the real brother, inherits. We studied there in the Ukhuwa, in the males, you have sons of the full brothers and the sons of the half brother. अ, सगे भाई का बेटा और बाप शरीक भाई का बेटा दोनों वारिस बनते हैं. इब्न अख शकीक, ही विल इनहेरिट. बिन्तु अख शकीक, शी डज नॉट इनहेरिट. शी इज नॉट एन इनहेरिटर. बेटी, सगे भाई की बेटी, शी विल नॉट इनहेरिटर, वारिस नहीं होती है. Ibnu Akhli Ab, son of the half brother or consanguine brother, inherits. Bint Akhli Ab, no. Ibn Akhli uterine brother's son, no. Uterine brother's son does not. Only the real brother and the full brother and the half brother's sons they inherit. सगे और बाप शरीक भाई के बेटे बस वारिस बनते हैं. माँ शरीक भाई के बेटे वारिस नहीं बनते हैं. The sons of the uterine brother, they don't inherit. If the son does not inherit, how is the daughter going to inherit? No. Of the Akhli so she also will not inherit. Then you have real sister, she will inherit. You have consanguine sister, she will inherit. You have uterine sister, माँ शरीक बहन, बाप शरीक बहन, सगी बहन, सबके सब वारिस बनेंगे. उसके बाद इन सबके बेटे और बेटियां, sons and daughters of the sisters, sons and daughters of all these sisters, they will not inherit. Sons and daughters of all kinds of sisters, they will not inherit. See, Ibnu Ukht Shaqiqa, Bint Ukht Shaqiqa, Ibnu Ukhti Li'ab, or Bint Ukhtin Li'ab, or Ibnu Ukhtin Li'um, or Bint Ukhtin Li'um. They all will not inherit because sons and daughters of the real, all kinds of sisters, they don't inherit. They are not inheritors principally. Then you have uncles, you have real uncle, you have or your full uncle, half uncle, and the uterine uncle. Uterine uncle is not an inheritor. These two are inheritors. Okay, सगे चचा, बाप शरीक चचा वारिस बनते हैं, माँ शरीक चचा वारिस नहीं बनते हैं. उसके बाद में the sons of the full uncle and the half uncle, these two are inheritors. Okay, sons and the daughters, sorry. Okay, sons of the uterine uncle is not an inheritor. Son of the uterine uncle is not an inheritor. Likewise, daughter of the real uncle is also not inheritor. Only sons are. Then grandson of the real uncle, yes. You can it doesn't matter even if you go down the line. Important thing is that they should also all be from the male lineage.
So grandson of the real uncle or the full uncle will become an inheritor. uh, Likewise, the grandson of the uncle also inherits, but grandson of the uterine uncle will not inherit, because when the son of uterine uncle does not inherit, then how come the grandson of the uterine uncle is going to inherit? Which means माँ शरीक चचा का पोता इनहेरिट नहीं करेगा, माँ शरीक चचा का पोता वारिस नहीं बनेगा। ठीक है, देन वी हैव बिन्तु इब्न अम शकीक, डॉटर ऑफ द सन ऑफ द रियल अंकल, डॉटर ऑफ द सन ऑफ द रियल अंकल। ठीक है, सगे चचा के बेटे की बेटी नहीं, ओनली मेल्स, फीमेल्स नहीं, नो फीमेल्स इन दिस, सो दिस इज हाउ द कंप्लीट लिस्ट इज। Okay, if you count, you'll maybe you'll be able to, like, get around 23 of them, because motik and motik are not there. So if you'll count these ticks, maybe 23 or little more, because you have, like, great grandsons and great granddaughters are also there. But there are total 23 inheritors in this list, except for two, which are the motik and the motik are not listed here. Okay, now let us come to this exercise. And in this exercise, we have to see whether the husband is going to get half or not. Okay, we have to see whether the husband is going to get। ठीक है जी, हमको ये देखना है कि क्या शौहर को 50% हाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। दिस इज व्हाट वी हैव टू सी। फर्स्ट एग्जांपल, यू हैव जौज, यानी अ वुमन डाइड लिविंग बिहाइंड अ हस्बैंड एंड अ डॉटर। एक औरत की वफात होती है और अपने पीछे एक शौहर को और एक बेटी को छोड़ जाती है। अब शौहर को कितना मिलेगा, बेटी को कितना मिलेगा, हमने पढ़ लिया है, वी हैव स्टडीड हाउ मच a husband will get here and how much a daughter will get here. I want answers from you. See, for husband there are only two shares. Okay, husband can get either 1 by 2 or 1 by 4 with conditions. Okay, daughter can get 1 by 2 or 2 by 3 with conditions. Okay, I will very quickly go through the conditions. First, for the husband, husband gets 1 by 2 in the absence of descendants. शौहर को 1 by 2 दिया जाएगा अगर मरने वाली के औलाद नहीं होगी। तो औलाद से मुराद है बेटा बेटी पोता पोती सब आ गए औलाद में। ठीक है, औलाद में सब आ जाते हैं, बेटा बेटी पोता पोती, यानी हम कहेंगे फरे वारिस और फुरू। फर उल वारिस नहीं होंगे तो हाफ देंगे। हस्बैंड गेट्स 1 by 2 इफ देर आर नो डिसेंडेंट्स ऑफ द डेड, and husband gets 1 by 4 when there are descendants of the dead. And descendants, it includes sons, daughters, grandson, granddaughters, great grandson, great granddaughters, and keep going down the line. शौहर को 1 by 4 कब देंगे, जब मरने वाली के औलाद होगी। औलाद से मुराद बेटा बेटी पोता पोती पड़पोता पड़पोती सब आ गए उसमें। ठीक है, तो उसको हम 1 by 4 देंगे। Now, when will the daughter get 1 by 2 and when will she get 2 by 3? Okay, 1 by 2, you have two conditions for her to get 1 by 2. First condition, there should not be a surviving son of the dead. There should not be a surviving son of the dead. Number one. Condition number two, she should be alone. There should not be no other daughter of the dead. There should not be no survive. There should not be a surviving daughter of the dead. If these two conditions are fulfilled, daughter will get 1 by 2. When will she get 2 by 3? First condition, there should not be surviving son of the dead. Number one. Number two, they should be more than one. Okay, just opposite of 1 by 2. Otherwise, the conditions are same. बेटी को 1 by 2 कब मिलेगा, बेटी को 1 by 2 मिलेगा नंबर वन, दो शर्तों के साथ, जब मरने वाली का कोई बेटा ना हो। नंबर दो, बेटी अकेली हो। 2 by 3 कब मिलेगा बेटी को, मरने वाली का बेटा ना हो, एग्जैक्टली सेम कंडीशन, और एक से ज़्यादा बेटियां हो मरने वाली की, तब उनको 2 by 3 मिलेगा। नाउ लेट अस अप्लाई द रूल्स एंड टेल मी हाउ मच द हस्बैंड विल गेट हियर and how much the daughter will get here. Yes, please. I need the answers. It has to be interactive because I am not going to do everything. You have to give me the answers. Type the answers, all of you, how much the husband will get and how much the daughter will get. And you should know the reasons for it. बताएं शौहर को और बेटी को क्या मिलेगा।
We have got the answer from Shamshad. We are like four of you, all four or five of you. Type the answer. शहजाद, सफ़िया बाजी टाइप करें। आवाज़ आ रही है आपको, टाइप करें फिर। टाइप द आंसर। 1/2 डॉटर, 1/2। वो ये एफ कौन है? अरे एफ तो कोई है ही नहीं। चलें तो 1/2 नहीं, हस्बैंड को 1/4 है। ठीक है भाई शहजाद, 1/2 नहीं है। 1/2 कैसे दे रहे हो हस्बैंड को? जब बेटी मौजूद है, फर उल वारिस यहाँ पर मौजूद है, तो हम उसको नहीं दे सकते ना। हस्बैंड को तो नहीं दे सकते हम 1/2, 1/4 देना पड़ेगा। क्योंकि बेटी मौजूद है, जब बेटी मौजूद है तो शोहर को 1/2 नहीं मिल सकता, 1/4। और बेटी के लिए दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, इसीलिए हम बेटी को 1/4 देंगे और 1/2 देंगे। तो है ना, 1/4 शोहर को दे दिया और 1/4 शोहर को दे करके 1/2 हमने बेटी को दे दिया। अब जो बचेगा वो वापस बचा हुआ बेटी को ही दे दिया जाएगा। ओके, 1/4 बच जाएगा, वो वापस से बेटी को मिल जाएगा। इसको रद्द कहते हैं, जो हो सकता है कि आगे जाके हम पढ़ेंगे इसी पोयम में, उसको रद्द कहा जाता है। जो बच गया वो वापस बेटी के पास आ जाएगा। आ, उसके बाद अगली एक्सरसाइज है, अगला नंबर है जौज और शोहर है और एक पोती है। शोहर है और पोती है। हाँ जी, 1/4 और 1/2 सही है। अब अगले एग्जाम्पल में हमारे पास शौहर है मरने वाली का और एक पोती है। शौहर को क्या देंगे, पोती को क्या देंगे, बताइए। पोती को 3 कंडीशंस के साथ हम 1/2 देते हैं। नंबर 1, पोती से ऊपर के दर्जे में कोई फर उल वारिस मौजूद ना हो। पोती से ऊपर के दर्जे में बेटा बेटी आते हैं, मतलब बेटा बेटी मौजूद ना हो। नंबर 2, मरने वाली का या मरने वाले का पोता ना हो, यानी इसी के लेवल में कोई पोता ना हो। और तीसरी कंडीशन ये अकेली हो, तब इसको आधा देंगे। और अगर 2/3 होगा तो कंडीशन सिर्फ यही बदलेगी कि ये एक से ज़्यादा हो। तो यहाँ पर ये एक ही है। अब आपको बताना है कि हस्बैंड को क्या देना है और पोती को क्या देना है शेयर। हस्बैंड को क्या शेयर देना है, पोती को क्या शेयर देना है। चलिए जी, हस्बैंड पोती। हाँ, शमशाद कहते हैं 1/4 1/2। सफ़िया बाजी कह रही हैं 1/2। भाई 1/2 क्यों दे रही हैं आप हस्बैंड को? 1/2 क्यों दे रही हैं आप? पोती मौजूद है ना वहाँ। पोती भी तो फरे वारिस में आती है। हमने यही पढ़ा है ना कि अगर बेटा बेटी पोता पोती ना हो। हाँ, पोती मौजूद है, इसलिए हस्बैंड को 1/4 देना पड़ेगा, 1/2 नहीं दे सकते ना। हस्बैंड का शेयर कम हो जाएगा, पोती की मौजूदगी में हस्बैंड का शेयर कम हो जाएगा। हाँ, हस्बैंड 1/4 और पोती 1/2, सेम पहले वाले प्रॉब्लम की तरह ही होगा। ठीक है, तो शौहर हस्बैंड वाइफ के जो शेयर्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा आसान होते हैं, उसमें तो गलती होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें कोई कंडीशन ही नहीं है, एक एक ही कंडीशन है बस उसमें। उसमें तो बिल्कुल गलती नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, हस्बैंड वाइफ के शेयर्स में गलती बिल्कुल नहीं होना चाहिए। भाई हस्बैंड को 1/2 कब मिलेगा? जब फर वारिस ना हो। हस्बैंड को 1/4 कब मिलेगा? जब फर वारिस हो। ख़त्म हो गया हस्बैंड का मामला। बीवी का मामला, बीवी को 1/4 कब मिलेगा? जब फर वारिस ना हो, यानी बेटा बेटी पोता पोती। और फिर नीचे भी मैं सिर्फ बेटा बेटी पोता पोती तक रख रहा हूँ, लेकिन और नीचे भी चलते चले जाएँ, पड़ पोती पड़ पोता सब आते हैं, उसी में आ जाते हैं। इसी तरह से बीवी को 1/8 कब मिलेगा? जब फरउल वारिस मौजूद हो, तब। बस ये तो, ये बड़ी आसान शर्त है हस्बैंड वाइफ की, और इसमें अहले इल्म कहते हैं कि मियाँ बीवी के शेयर्स में तो गलती होना ही नहीं चाहिए। बाकी में होगी तो ठीक है, समझ सकते हैं,
लेकिन शौहर और बीवी के शेयर्स में कोई गलती नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबसे आसान कंडीशंस उन्हीं के हैं। ठीक है, अभी हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। आपके पास में मरने वाली का एक शौहर है, एक बेटी है और एक पोती है। ठीक है, ये इनकी सारों की कंडीशंस हम पढ़ चुके हैं। अब मैं पूछ नहीं रहा हूँ, अब मैं करूँगा, आप लोगों ने सुनना है। ठीक है, क्योंकि वरना हम फिर क्या है कि मुश्किल से 8-10 ही एग्जाम्पल कर पाएंगे, हमको ज़्यादा करना है, ज़्यादा से ज़्यादा कवर करना है इस सेशन में, ताकि बाद में आप सुन करके देख सको, समझ सको। क्योंकि मीरास हमने पहले ही कहा कि इसको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, बग़ैर प्रैक्टिस के बहुत मुश्किल है, प्रैक्टिस की ज़रूरत है। मैं कोशिश करूँगा कि एक्सरसाइज शेयर कर दूँ, ताकि आप लोग इसमें इसके जो है ना पेजेस को ज़रा काले कर सकें। तो ज़ौज है, देखें यहाँ पे बेटी भी मौजूद है और पोती भी मौजूद है, तो ज़ौज को मिलेगा 1/4। ठीक है, कम हो गया इसका हिस्सा। बेटी क्योंकि अकेली है, बेटा नहीं है और इसके साथ और कोई बेटी भी नहीं है, ये अकेली है, इसका मतलब इसको हम आधा देंगे। ठीक है, पोती पे आ जाएं। पोती देखें, पोती के लिए पोती को आधा नहीं मिलेगा। पोती को आधा क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि देखें बेटी मौजूद है, शर्त यही थी कि इससे ऊपर के दर्जे में, पोती से ऊपर के दर्जे में फ़रे वारिस मौजूद ना हो, लेकिन यहाँ तो मौजूद है, इसका मतलब पोती को 1/2 नहीं मिल सकता, पोती को 2/3 भी नहीं मिल सकता अभी इस वक्त। क्यों? क्योंकि वही कंडीशन है, पोती से ऊपर के दर्जे में फ़रे वारिस मौजूद ना हो जबकि बेटी मौजूद है, तो कंडीशन फेल हो गई वहाँ पे। उसके बाद पोती के लिए एक और शेयर है 1/6। पोती को 3 शेयर मिल सकते हैं, या तो 1/2 या 2/3 या 1/6, ये 3 शेयर ही मिल सकते हैं, 3 में से कोई एक। तो जब 1/2 और 2/3 नहीं मिल रहा है, तो बचा क्या है? अभी 1/6 बचा है। हाँ, वो फुलफिल हो रहा है क्योंकि तकमीलतुस सुलुसैन, हमको 2/3 कंप्लीट करना है, जो कि मैक्सिमम शेयर होता है फीमेल्स का। कुरान में अल्लाह ने मैक्सिमम शेयर जो उनको दिया है 2/3 दिया है। अभी 2/3 पूरा होने में कुछ बच रहा है, 1/2 ही मिल रहा है अभी बेटियों को। तो कितना बच रहा है? 1/6 बच रहा है। आप 1/2 और 1/6 को ऐड करोगे तो 2/3 हो जाएगा। तो ये वजह है कि पोती को हम 1/6 देते हैं इस सूरत में। कहते हैं तकमीलतुस सुलुसैन, 2/3 को पूरा करने के लिए पोती को 1/6 दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से 1/6 होता है। उसके बाद अगले एग्जाम्पल में है शौहर, उसके बाद बेटी की बेटी, बेटी की बेटी यानी डॉटर्स डॉटर, यानी ये नवासी है, मरने वाली की नवासी। और उसके बाद में एक सगा भाई है जो काफिर है। ठीक है, तो सगा भाई जो काफिर है वो तो ऐसा है जैसे है ही नहीं। ठीक है ना, इख्तिलाफुद्दीन, ये मवाने में से इर्स के हमने पढ़ा है, इसको 3 मवाने हैं। एक इख्तिलाफुद्दीन है, उसके बाद में रिक्का है और कत्ल है ना, ग़ुलामी है और कत्ल है, और एक इख्तिलाफुद्दीन। तो ये इसका होना और ना होना बराबर है, इसको काट दें यहाँ से। लाइकवाइज बिन बिन्त, ये भी जो है ये वारिस नहीं बनती। बचा जौज, जौज को आधा देंगे, ज़ौज को आधा देंगे। बाकी आधा कहाँ जाएगा? वापस ज़ौज को नहीं मिलेगा, क्योंकि अक्सर अहले इल्म के नज़दीक ज़ौज को बस इतना ही मिलता है। अब ये बचा हुआ आधा कहाँ जाएगा? इख्तिलाफ है, अहले इल्म का इख्तिलाफ है। बाज़ कहते हैं कि वो बैतुल माल में चला जाएगा, बाज़ कहते हैं कि ज़वील अरहाम। ज़वील अरहाम ये वो रिलेटिव्स हैं जो बाप के थ्रू कनेक्टेड नहीं होते लेकिन माँ के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। जैसे जो ननियाल के रिश्ते हैं वो सारे आते हैं, मतलब खाला हैं, मामू हैं और नाना हैं, फिर खाला के बच्चे, मामू के बच्चे, ये सब उसमें आते हैं। या फूफियाँ, वो भी इधर ही आती हैं ज़वील अरहाम में, फूफियों के बच्चे, लड़का लड़की, वो सब आ जाते हैं। तो वो उधर जाएगा और उनको अपना हल करने का उनका भी तरीक़ा है, उनको किस ऑर्डर में उनको दिया जाएगा, पूरा एक प्रोसेस है। ठीक है, लेकिन बहरहाल अभी ये समझें कि शौहर को 1/2 मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बेटी मौजूद नहीं है, यानी कोई भी वारिस मौजूद नहीं है, फ़र वारिस मौजूद नहीं है। ये जो नवासी है ये फ़र वारिस में काउंट नहीं होती है, फ़र उल वारिस में काउंट नहीं होती है। उसके बाद अगला एग्जाम्पल है ज़ौज और इब्नु बिन्त, हस्बैंड है और बेटी का बेटा है, शौहर और नवासा। नवासा तो वारिस ही नहीं बनता है, वारिस होता ही नहीं है, तो फिर उसका होना नहीं होना बराबर है, तो शौहर को 1/2 दे देंगे क्योंकि अकेला है। ठीक है, उसका कोई, मरने वाली का कोई फ़र्उल वारिस नहीं है। उसके बाद शौहर है और सगी बहन है, शौहर और सगी बहन। देखिए, शौहर पर कंडीशन सारी फुलफ़िल हो गई, हाफ़ की, फ़रे वारिस मौजूद नहीं है, और रियल सिस्टर को भी आधा देंगे क्योंकि इसकी भी सारी कंडीशंस फुलफ़िल हो गई। बाप दादा मौजूद नहीं है, फ़रे वारिस मौजूद नहीं है,
नंबर 3, मरने वाली का सगा भाई मौजूद नहीं है। नंबर 4, ये अकेली है। ठीक है, तो 1/2 दे देंगे। नीचे आ जाएं, शौहर है और बाप शरीक भाई है और एक सगा चचा है लेकिन ग़ुलाम है, रकीक। तो ये जो ग़ुलाम है तो रिक्का की वजह से मवाने हो गया ये, यानी इनहिबिटर है, तो ये इसका होना नहीं होना तो बराबर है, इसको काट दो। बचे 2 लोग बस, ज़ौज बचा और अखली अब। ज़ौज इसको आधा दे देंगे, क्यों? कंडीशन फुलफ़िल हो गई, फ़रे वारिस मौजूद नहीं है। अखली अब ये हम पढ़ेंगे, अभी पढ़ा नहीं है, असबा बन जाएगा और बाकी बचा हुआ माल ये ले लेगा, आधा इसको चले जाएगा। अगला क्वेश्चन है ज़ौज, उसके बाद में शौहर है, सगी बहन है और बाप शरीक भाई है। शौहर, सगी बहन और बाप शरीक भाई। अब शौहर जो है, ज़ौज जो है, इसको हम दे देंगे 1/2 कंडीशन, क्योंकि फुलफ़िल हो रही है, फ़र वारिस मौजूद नहीं है। सगी बहन, उख्त शकीका है और अखली अब। उख्त शकीका के लिए भी हाफ वाली सारी कंडीशंस फुलफ़िल हो गई हैं। ठीक है, अभी मैंने कंडीशंस गिनवाई थी आपको। बाप दादा ना हो, बेटा बेटी पोता पोती ना हो, मरने वाली का कोई सगा भाई ना हो, यानी इसका भाई सगा, और इसी तरह से मरने वाली की कोई और बहन ना हो, मतलब ये अकेली हो। सारी कंडीशंस फुलफ़िल हो गई, आधा दे दिया। आखिरी अब अभी हमने देखा था असबा बनता है, असबा बनेगा, अगर बचेगा तो लेगा, यहाँ कुछ बच ही नहीं रहा है, आधा इसको ले मिल गया, आधा इसको मिल गया, ख़त्म हो गया माल पूरा, तो इनको मिलेगा 0। असबा बनते हैं और बचा हुआ माल पाते हैं, जब माल ही नहीं बचा तो इनको कुछ भी नहीं मिलेगा, खाली हाथ वापस लौट जाओ। उसके बाद अगले एग्जाम्पल में शौहर है और सगे भाई का बेटा, यानी मरने वाली का भतीजा कह सकते हैं इसको, भाई का बेटा। ठीक है, भाई का बेटा भतीजा ही होगा, हाँ, तो ये इसका भतीजा है, इब्नु अख शकीक। ठीक है, तो ज़ौज को मिलेगा आधा, क्योंकि फ़रे वारिस मौजूद नहीं है मरने वाली का, और ये जो है असबा बन जाता है, मेल रिलेटिव है, असबा बन जाता है। सारे मेल रिलेटिव्स मैक्सिमम असबा बनते हैं, सिर्फ कुछ कुछ, जैसे ज़ौज हस्बैंड को छोड़ दिया जाए, इसी तरह से माँ शरीक भाई को छोड़ दिया जाए, तो अक्सर जो है वो असबा बनते हैं। तो ये जो है मरने वाली का मरने वाली के सगे भाई का बेटा या असबा बनेगा और बाकी माल आधा ये ले लेगा। अगले एग्जाम्पल में शौहर है और बेटा है। अब देखें, यहाँ बेटा मौजूद है, इसका मतलब शौहर को अब 1/4 ही मिलेगा और बेटे को असबा, बचा हुआ माल पूरा बेटा ले लेगा, 3/4। असबा होता है वो, बचा हुआ माल लेता है, उसका कोई फिक्स शेयर नहीं है कुरान में। उसके बाद शौहर है, बेटा है, बेटी है। ठीक है, शौहर है 1/4, क्यों? बेटा बेटी दोनों मौजूद हैं। उसके बाद बेटी है, बेटी को क्या आधा देंगे? नहीं दे सकते, क्यों? क्योंकि मरने वाली का बेटा मौजूद है, तो कंडीशन फेल हो रही है उसको आधा देने की। जब आधा 1/2 देने की कंडीशन फेल हो रही है तो 2/3 की भी फेल हो रही है, क्योंकि वहाँ पर भी सेम ही कंडीशन है कि मरने वाली का बेटा मौजूद ना हो। यहाँ तो बेटा मौजूद है, इसका मतलब इस बेटी को 1/2 भी नहीं मिलेगा, 2/3 भी नहीं मिलेगा, और यही दो तो शेयर्स होते हैं उसके, तो ना 1/2 ना 2/3, फिर क्या मिलेगा? ये दोनों मिल करके बचा हुआ माल बांट लेंगे, मिल करके, इन द रेशो ऑफ 2:1। वो कैलकुलेशन कैसे होता है वो बाद में देखेंगे। 2:1 के रेशो में ये बांट लेंगे, यानी बेटे को आप 2 काउंट करोगे, बेटी को 1 काउंट करोगे, इनको 3 मान लोगे, हैं ये 2, इनको 3 मान करके आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। यानी जो 3/4 बचेगा 1/4 देने के बाद, जो 3/4 बचेगा उसको आप 3 हिस्सों में डिवाइड कर लोगे। ठीक है ना, 3 हिस्सों में डिवाइड करोगे तो ये 3 से 3 कट जाएगा, मतलब बेटी को 1/4 दोगे और बेटे को 1/2 दे दोगे। ये इस तरह से होगा ये। तो 1/4 1/2 1/2, देखें बेटी को आधा मिला है बेटे के मुकाबले में। लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उनसैन। अभी यहाँ वो फिक्र नहीं करनी है, बस मैंने बता दिया कि कैसे 2:1 के रेशो में डिवाइड होता है। ठीक है, फिर हमारे पास अगले एग्जाम्पल में शौहर है, फिर एक पोता है जो ग़ुलाम है और एक सगे चचा का बेटा है। तो ये तो इसका होना नहीं होना बराबर है, इसको कट कर दें हम। तो जब ये कट हो गया तो ये जो ज़ौज है, अब इसको 1/2 मिलेगा, क्यों? क्योंकि ये इसका तो होना नहीं होना बराबर ही है, ये पोता एग्जिस्ट ही नहीं करता, गुलाम है, इसलिए ज़ौज को 1/2 मिलेगा, इसे तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। और सगे चचा का बेटा जो है असबा बन करके पूरा बचा हुआ माल आधा जो है वो ले लेगा। अब यहाँ पर बेटी है और एक सगी बहन है। ठीक है ना, एक बेटी है और एक सगी बहन है। बेटी को कितना देंगे? बेटी को 1/2 दिया जाएगा, 1/2। ठीक है ना।
उख्त शकीका को 1/2 नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि कंडीशन फेल हो रही है। क्या कंडीशन है? हाफ पाने की उख्त शकीका के, बाप दादा ना हो, ये कंडीशन तो फुलफिल हो गई, ठीक है। लेकिन दूसरी कंडीशन फेल हो गई, क्योंकि बेटा बेटी पोता पोती ना हो, लेकिन यहाँ बेटी मौजूद है, तो दूसरी कंडीशन ही फेल हो गई, तो आधा नहीं मिल सकता। उसी तरह से 2/3 भी नहीं मिल सकता, क्योंकि सेम कंडीशंस वहाँ पर भी है। बाप दादा ना हो, बेटा बेटी पोता पोती ना हो, लेकिन यहाँ तो है। 2/3 भी नहीं दे सकते, फिर क्या करेंगे? ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। ये असबा माअल गैर बनते हैं। बेटी ये जब होती है, बेटी के साथ अगर सगी बहन आ जाए तो ये आसबा बन जाती है, मतलब बचा हुआ माल लेती है ये। इसका कोई फिक्स्ड शेयर नहीं रह जाता। जो बचेगा, यहाँ पर तो आधा बच रहा है, हो सकता है कि ये बेटियां अगर दो होती तो ये 2/3 लेती, और उसके बाद बचा हुआ 1/3 इस सगी बहन को मिलता। तो इसका कोई फिक्स शेयर नहीं रह जाता उस सूरत में, जब ये बेटी के साथ आ जाती है। तो उस सूरत में ये असबा माल गैर कहते हैं। वो अगली क्लासों में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, पोयम में आएगा। उसके बाद बेटी है और एक पोती है। ये बिल्कुल इससे पहले भी एग्जाम्पल हमने किया है। बेटी को 1/2 और पोती को 1/6, तकमीलतुस्सुलुसैन, दोनों को मिला देंगे, 2/3 पूरा हो जाएगा। उसके बाद 1/3 जो बचेगा वो वापस इन लोगों के पास रद्द होकर के आएगा। इनके शेयर्स के रेशो में ही रद्द होगा वो। इन मतलब जो इनके शेयर्स बनते हैं ना, ये 1/6 और 1/2, इसका आपको प्रपोर्शन निकालना पड़ता है कि 1/6 टोटल का कितना हो रहा है, 1/2 टोटल का कितना हो रहा है। उसके बाद उसी रेशो में ये जो 1/3 बच रहा है, बिल्कुल एग्जैक्टली उसी रेशो में इन दोनों में चले जाएगा। जितना इनका यहाँ पर रेशो बन रहा है, उसी रेशो में इनके पास चले जाएगा। यानी ये 66% है और ये तो कुछ आपका 33% है। ये 1/2 का 1/3 है ये। एनीवे उन चक्करों में भी हम नहीं पढ़ रहे, लेकिन मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जब इनको 1/3 बचा हुआ इनके पास लौट कर आएगा भी, तो इनके अपने शेयर्स के रेशो में ही वापस लौटेगा वो। बेटी है, दो बेटे हैं। देखें, बिनतुन इब्नान, इब्नान यानी इब्नानी, यानी दो बेटे हैं। अब यहाँ पर बेटी अकेली नहीं है, उसके साथ दो बेटे मौजूद हैं। इसका मतलब ये बेटी आधा नहीं लेगी, बल्कि ये दोनों असबा बनेंगे। 2:1 के रेशो में ये माल को बांट लेंगे। तो ये दो बेटे हैं, दो बेटे 2 × 2 4 कर दो आप इसको, चार लड़कियों के बराबर समझ लो। क्यों? क्योंकि लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन होता है। तो चार, दो बेटे हैं तो मल्टीप्लाई कर दो 2 से। चार बेटियां समझ लो इनको, ये एक बेटी, तो कुल 5 हिस्से आपको करने पड़ेंगे माल के। 5 हिस्से माल के करोगे, एक बेटी को दोगे और दो दो दोनों बेटों को दे दोगे। तो इस तरह से 4 और 1 5 हिस्से करके बांट दोगे। लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। यहाँ पे बेटा बेटी एग्जैक्टली सेम यही सिचुएशन है। बेटा बेटी असबा बनेंगे, मिल करके बांट लेंगे। बेटी को 1/2 नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि बेटा मौजूद है उसके साथ, वो उसे असबा बिल गैर बना देगा। ये हम पढ़ेंगे आगे जाके। तो बेटे को 2 काउंट करो, बेटी को 1, 3 हिस्से में प्रॉपर्टी डिवाइड कर दो, एक हिस्सा बेटी को दे दो, 2 हिस्से बेटे को दे दो, किस्सा ख़त्म। मतलब अगर 3 लाख रुपए होंगे, 1 लाख रुपए बेटी को चले जाएंगे, 2 लाख रुपए बेटे को चले जाएंगे। आसान सा कैलकुलेशन है। उसके बाद हमारे पास बेटी है और एक पोता है। बेटी अकेली है, 1/2, पोता असबा, बचा हुआ माल आधा पोता ले लेगा। कंडीशन सारी फुलफिल हो रही हैं। हमारे पास दो बेटियां हैं, बिनतानी, एक बेटा है। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसा ही हो गया, आसबा वाली सिचुएशन हो गई। ये जो बेटियां हैं अभी 2/3 नहीं ले सकती, क्योंकि दो हैं। 2/3 मगर नहीं लेंगी। क्यों? क्योंकि बेटा मौजूद है मरने वाली का, तो वो इन्हें असबा में कन्वर्ट कर देगा। दोनों माल मिलकर बांटेंगे 2:1 के रेशो में। दो बेटियां हैं, इनको दो लिख दो, एक बेटा है, इसको भी दो लिख दो, है ना। लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। कुल प्रॉपर्टी को 4 हिस्सों में बांटेंगे। एक एक दोनों बेटियों के पास चला गया, दो बेटे के पास। लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। देखें, बेटी का एक हिस्सा है, बेटे के दो हिस्से हैं। वही कुरान के कायदे के हिसाब से है, लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। दो बेटियां, दो बेटे, बताएं कितने हिस्सों में प्रॉपर्टी डिवाइड करेंगे जल्दी से। दो बेटे दो बेटियां हैं, कितने हिस्सों में प्रॉपर्टी तकसीम की जाएगी? दो बेटे दो बेटियां, बेटों को दो मान करके मल्टीप्लाई करें और टोटल हिस्से बताएं हमको, कितने हिस्सों में प्रॉपर्टी डिवाइड की जाएगी। ओके, शमशाद कह रही हैं 6। शहजाद, जुवेरिया, शमशाद 6, शहजाद
चले भाई, आप लोग क्यों पार्टिसिपेट नहीं कर रहे? 6 होंगे, 6। ठीक है, 6 हिस्से होंगे। 6 हिस्से कैसे होंगे? ये 2 बेटे, मतलब ये 4 के बराबर हो गए, और 2 बेटियां 2 के बराबर हैं, है ना। 4 और 2 6, तो पूरी प्रॉपर्टी को 6 हिस्सों में बांटोगे आप। एक एक हिस्सा इन 2 बेटियों में चले जाएगा, और 2 2 हिस्से इन 2 बेटों में जाएंगे। तो इस तरह से 6 हिस्से हो जाएंगे। ठीक है। आपके पास एक बेटी है और एक बाप शरीक बहन है। बेटी और बाप शरीक बहन। तो देखें, बेटी, इसको हम कितना देंगे? इसको हम 1/2 दे देंगे। 1/2। और बेटी के साथ ये उख्तली अब भी आ जाती है, तो ये असबा माल गैर बनती है, अभी हम पढ़ेंगे। असबा माल गैर बन जाएगी ये भी, मतलब बचा हुआ माल ले लेगी ये। उख्तली अब असबा बन जाएगी और बचा हुआ माल ले लेगी। बेटी के साथ जब वो आती है तो उसे असबा बनाया जाता है, क्योंकि वो ना 1/2 की कंडीशन में फिट होती है, ना 2/3 की कंडीशन में फिट होती है। क्योंकि कंडीशंस फेल हो जाती हैं। अगर आप कंडीशंस याद करेंगे और उसको अप्लाई करेंगे तो पता चलेगा 1/2 भी नहीं मिलेगा इसको, क्योंकि बेटा बेटी पोता पोती में से बेटी मौजूद है। तो 1/2 और 2/3 दोनों कंडीशंस फुलफिल नहीं हो रही। तो जो सिर्फ हो रही है फुलफिल, और यही हो रही है कि उसको असबा बनाया जाए। उसके बाद बेटी है और शौहर है। ठीक है ना। बेटी के लिए 1/2 कंडीशंस फुलफिल हो गई, जौज के लिए भी 1/2 फुलफिल हो गई, आधा आधा एक, पूरा माल तकसीम हो गया। बेटी है, बीवी है। बीवी को 1/8 मिलेगा। सॉरी, यहाँ पे 1/4, 1/2 नहीं मिलेगा, आप लोग करेक्ट करें भाई। 1/4 मिलेगा, क्योंकि बेटी मौजूद है। बेटी को 1/2। यहाँ पे जौजा बीवी है, उसको 1/8, क्यों? बेटी मौजूद है इसलिए 1/8, और बेटी को 1/2। ठीक है। उसके बाद आ जाए, बेटी है, उसके बाद बेटा है जो कातिल है, यानी अपने मुवर्रिस का कातिल है ये, इसलिए इसका होना नहीं होना बराबर है, इसको काट देते हैं। तब बचे हमारे पास बेटी और सगा भाई। बेटी को 1/2। ठीक है। अगर ये बेटा कातिल नहीं होता तो फिर बेटी 1/2 नहीं पाती, बल्कि ये दोनों मिलके असवा बनते और पूरे माल को बांट लेते, और ये सगा भाई इसे कुछ भी नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि बेटा जो था वो इसे कुछ भी लेने नहीं देता, लेकिन ये कातिल था बेटा, तो इसका होना नहीं होना बराबर हो गया, ये मवाने में से है, इसको कट कर दिया, तो अब बेटी को आधा मिलेगा, और ये जो सगा भाई है ये असबा बन के बचा हुआ आधा माल ले लेगा। उसके बाद देखें, बेटी काफिरा है, इख्तिलाफुद्दीन, तो इसका होना नहीं होना बराबर है, काट दें। अब आपके पास जौज बचा है, और ये जो बाप शरीक भाई है ये ग़ुलाम है, तो ये भी होना नहीं होना बराबर है, मवाने में से है ये देखें, यहाँ पर इख्तिलाफुद्दीन है, यहाँ पे क़त, यहाँ पे रिक्का है, दोनों को कट कर दिया, इनहिबिटर्स हैं, वो मवाने हैं। बचा शोहर अकेला, इसको आधा देंगे। बाकी आधा कहाँ जाएगा? वही तफसील इसके पहले हमने बात की थी, इख्तिलाफ है वो। बैतुल माल में जाएगा, ज़वील अरहाम में जाएगा, अहले इल्म का इख्तिलाफ है। बेटी और बाप, मरने वाले के एक बेटी और एक बाप। बेटी को 1/2, बाप का शेयर 1/6 होता है, हमने पढ़ा था। जब फ़र वारिस मौजूद हो तो बाप को 1/6 मिलता है। अब ये फ़र उल वारिस अगर मुज़क्कर होगा तो सिर्फ 1/6 मिलेगा, अगर वो मुअन्नस होगा फ़र उल वारिस, जैसे यहाँ बेटी है या पोती है, इस तरह से पड़पोती, तो मुअन्नस अगर फ़र वारिस होगा तो बाप 1/6 भी लेगा, और उसके बाद अगर कुछ बचेगा तो असबा के तौर पे, आइन असबा के तौर पे बचा हुआ माल भी ले लेगा, तो पूरा माल यहाँ कंज्यूम हो जाएगा। ठीक है। तो 1/2 बेटी को दिया, उसके बाद बाप ने पहले 1/6 लिया। अब इन दोनों को जोड़ के देखेंगे, अगर पूरा हो गया तो ख़त्म हो गई बात, लेकिन अगर कुछ बच रहा है तो बचा हुआ फिर वापस बाप के पास आ जाता है असबा के तौर पे। ये मतलब होता है इसका। उसके बाद बेटी और दादा है, सेम यही सिचुएशन होगी जो बेटी और बाप वाली थी, एग्जैक्टली सेम सिचुएशन यहाँ अप्लाई करेगी। 1/2 और 1/6 प्लस असबा बन जाएगा वो दादा। अभी सारे हम सीधे चलते हैं यहाँ पर। ओके, यहाँ पर आते हैं। बेटी है और 2 पोतियाँ हैं। देखें, बिनता इबनिन मतलब 2 पोतियाँ हैं, ये 2 हैं। उसके बाद इबना इबनिन, ये 2 पोते हैं, तो इनको हम 4 मान लेंगे। 2 पोते हैं, इबना यानी इबनानी था वो, इबना इबनिन, बेटे के 2 बेटे, ये बेटे के 2 बेटियाँ। तो इस तरह से कुल 6 बेटियाँ मान लें या पोतियाँ मान लें इनको, और एक बेटी है। बेटी को तो हम आधा दे देंगे, और ये जो पोती है बिनता इब्न, इन 2 पोतियाँ हैं, इनको 2/3 नहीं दे सकते हम, क्योंकि कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, इनके ऊपर के दर्जे में बेटी मौजूद है, तो 2/3 इनको नहीं मिलेगा।
और इनको 1/6 भी इस वक्त नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इनका भाई मौजूद है इनके साथ, तो वो क्या करेगा, इनको असबा बना देगा। तो बचा हुआ माल, ये दोनों आधा जो 1/2 माल बचा है, उसको ये लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़े मिस्लु हद्दैन लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उनसयैन के कायदे के तहत ये आपस में बांट लेंगे 2:1। तो बची हुई जो प्रॉपर्टी है 1/2, इसके 6 हिस्से कर दिए जाएंगे, 1/2 के 6 हिस्से। ओके, 1/2 के 6 हिस्से करेंगे, और यानी कि 1/12। बेटियों को 1/12 1/12 और बेटों को 1/6 1/6 दे देंगे, और इस तरह से इनका काम ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद देखें, नहीं, ये कातिल वाला तो ठीक है, समझ में आ गया, इनका होना नहीं होना बराबर है, तो ये बची आगे अकेली बिन्तुल इब्न, इसको आधा दे देंगे। जो कातिल है पोती, उसका तो होना नहीं होना बराबर है। इसी तरह से यहाँ काफिर जो है पोती, इसको कट कर दो, जौज बचा, इसको आधा दे देंगे। ठीक है। अब उख्त शकीका की कुछ एक्सरसाइजेज हैं। सगी बहन है और बाप शरीक बहन है। सगी बहन को आधा मिल जाएगा क्योंकि सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, और बाप शरीक बहन को 1/6 मिलेगा। क्यों? तकमीलतुस्सुलुसैन, तकमीलतुस्सुलुसैन के कायदे के तहत जब सगी बहन और बाप शरीक बहन एक साथ किसी मसले में आ जाए अकेली अकेली, तो सगी बहन अगर उसको आधा मिल रहा है, तो उस सूरत में बाप शरीक बहन को 1/6 मिलेगा। क्यों? ये तकमीलतुस्सुलुसैन, क्योंकि दोनों का कंबाइंड शेयर 2/3 हो जाएगा, जो कि मैक्सिमम शेयर है अल्लाह की किताब में, जो कि औरतों को दिया जाता है मिल करके। उसके बाद शौहर है और सगी बहन है, तो हम कहेंगे शौहर को आधा और सगी बहन को भी आधा, तो हाफ हाफ, वन फुल हो गया पूरा ये। इसी तरह से जौजा है और उख्त शकीका है। जौजा को आप 1/4 दोगे क्योंकि फ़र्उल वारिस मौजूद नहीं है, और सगी बहन को आप आधा दे दोगे। ठीक है, और जो बचेगा वो वापस लौट करके सगी बहन को ही मिल जाएगा, 1/4 बचेगा। यहाँ पे देखें, सगा भाई और सगी बहन है, तो ये दोनों अब यहाँ पर मिलकर के आसबा बन जाएंगे और पूरे माल को 2:1 के रेशो में बांट लेंगे। अब यहाँ पर सगी बहन को 1/2 नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि कंडीशंस फुलफिल नहीं हो रही हैं सारी उसकी 1/2 या 2/3 लेने की। इसका मतलब ये अपने सगे भाई के साथ मिल करके असबा बनेगी और बचा हुआ माल 2:1 के रेशो में बांट देगी। अगेन वही 2:1, लड़के को 2 मान लो, लड़की को 1, पूरी प्रॉपर्टी के 3 हिस्से करो, 2 हिस्से लड़के को दो, 1 हिस्सा लड़की को दो। सगी बहन, एक सगा भाई, 2 सगी बहनें हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 सगी बहनों को 2 लिख दो, उख्तानी शकीकतान, और अख शकीक 1 मान लो, तो ये 2 और 1 3, सॉरी 2, क्योंकि भाई लड़का है ना, 2 और 2 4, पूरी प्रॉपर्टी को 4 हिस्सों में बांटो, 2 भाई को चलेगा, 1 1 इन दोनों बहनों को आ गया। ठीक है, तो इस सूरत में भी यहाँ पे इनको कोई फिक्स्ड शेयर नहीं दिया जाएगा क्योंकि इनका भाई मौजूद है। उसके बाद सगी बहन है और माँ है। ठीक है, अब सगी बहन को कितना देंगे? 1/2। क्यों? कंडीशन सारी फुलफिल हो गई। माँ को कितना देंगे? माँ के सिर्फ 3 शेयर्स हैं, या तो 1/3 या 1/6 या सुलुस बाकी, 1/3 ऑफ द रिमेनिंग। 1/3 ऑफ द रिमेनिंग सिर्फ वो 2 उम्री मसलों में होता है, ये उम्री मसला नहीं है। तो 1/3 ऑफ द रिमेनिंग को भूल जाए, 1/3 या 1/6 में से कोई एक शेयर माँ को देना पड़ेगा। 1/3 कब देते हैं? जब फर्द वारिस मौजूद ना हो और एक से ज़्यादा भाई बहन ना हो, कंडीशंस फुलफिल हो रही है, माँ को 1/3 दे दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद सगी बहन है और दादी है। दादी को हमेशा 1/6 मिलता है अगर माँ मौजूद ना हो, तो उनका और कोई शेयर नहीं है। दादी हो, नानी हो, परदादी हो, परदानी हो, सब एक साथ भी अगर आ जाएं तो सब शेयर करेंगे 1/6 में। दादी को 1/6, उख शकीका को 1/2। देखें, अख शकीक है और 5 सगी बहनें हैं। अब सगे भाई बहन एक साथ आ रहे हैं तो ये असबा बनेंगे, और सगी बहन जो है ये फिक्स्ड शेयर नहीं पाएंगे, 2/3 नहीं मिलेगा इनको। एक से ज़्यादा है ना, 5 है, तो इनको 2/3 नहीं मिलेगा, बल्कि भाई मौजूद है, भाई के साथ मिल करके असबा बनेंगे और 2:1 के रेशो में माल को बांट लेंगे। कितना बांटेंगे? ये अखवात शकीकात और शकाइक कितनी है? 5 है, तो 5 को 5 गिन लो आप, और यहाँ पे एक भाई है, इसको 2 काउंट कर लो, 5 और 2 7, पूरी प्रॉपर्टी के 7 हिस्से कर लेंगे। एक 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 ऐसे 5 हिस्से 5 बहनों में चलेगा और 2 हिस्से एक भाई को चलेगा। लिज़्ज़करी मिस्लु हद्दिल उनसयैन। उसके बाद एक बेटी है, एक पोती है और एक सगी बहन है। बेटी, पोती, सगी बहन। बेटी को कितना? 1/2। बेटी 1/2, पोती 1/6, तकमीलतुस्सुलुसैन।
और उख्त शकीका क्योंकि बेटी के साथ आ रही है उख्त शकीका, तो इसे कहते हैं असबा माल गैर। इससे पहले भी देखा था, असबा बनेगी, बचा हुआ माल वो ले लेगी, अगर बचेगा तो, नहीं बचेगा तो कुछ नहीं मिलेगा। उसके बाद बाप है, माँ है और सगी बहन है। बाप को 1/6, ठीक है, सॉरी 1/6 भी नहीं, बल्कि यहाँ पर तो कोई बेटा बेटी है ही नहीं, इसीलिए कंडीशन ही फुलफिल नहीं हो रही, तो बाप बनेगा असबा। माँ को कितना देंगे? 1/3, 1/3 देंगे। क्यों 1/3 देंगे? क्योंकि कंडीशन सारी फुलफिल हो रही हैं। माँ को 1/3 देने की कंडीशन फुलफिल हो रही है। नंबर एक, फ़र्उल वारिस ना हो। नंबर दो, एक से ज़्यादा भाई बहन ना हो। सारी कंडीशन फुल हो गई, फुलफिल हो गई, 1/3 दे दिया। उख शकीका कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? बाप मौजूद है। कंडीशन क्या है उख्त शकीका के 1/2 पाने की? बाप दादा ना हो, बाप मौजूद है तो 1/2 नहीं मिल सकता। 2/3 में भी सेम कंडीशन है, सेम कंडीशन है, बाप दादा मौजूद ना हो, बाप मौजूद है, 2/3 नहीं मिलेगा। तो क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। बाप इनको ब्लॉक कर देगा, हज्ब कर देगा। बाद में हम पढ़ेंगे कवाइद, जब हज्ब के आएंगे तो आप समझ जाएंगे कि बाप की मौजूदगी, कौन किसकी मौजूदगी में किसको ब्लॉक कर रहा है, किसको महरूम कर रहा है, किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, ये सारी चीज़ें आगे आएंगी। सगी बहन और इब्न बिनतिन, बेटी का बेटा, तो ये तो वारिस बनता ही नहीं है ना, नवासा वारिस नहीं बनता है। उसके बाद जद ली मतलब माँ से, माँ के रिश्ते से दादा है, तो वो भी रिश्ते, वो भी नहीं बनता है। बचा क्या? यानी माँ के रिश्ते से जितने भी यानी ऊपर जाएंगे मर्द, माँ के रिश्ते से वो वारिस ही नहीं बनते, जैसे नाना ही वारिस नहीं बनता जो कि ज़्यादा करीब है। तो ये भी जदली भी नहीं बनेगा, बच्ची उख्त शकीका, इसको हम आधा दे देंगे। उसके बाद अगली एक्सरसाइज थोड़ी सी बड़ी है, इसको करते हैं। देखें, एक बाप, मरने वाले का बाप, बेटी, एक सगी बहन और दो बाप शरीक बहनें हैं। देखें, एक सगी बहन, दो बाप शरीक बहनें हैं। अब देखें, बाप है, बाप को 1/6 मिलेगा क्योंकि फ़रे वारिस मौजूद है, बेटी भी, ये बेटी मौजूद है, फ़र वारिस, 1/6 मिलेगा। प्लस में यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं असबा, बचा हुआ माल भी लेगा ये। बेटी को 1/2, ठीक है। अब सगी बहन को क्या मिलेगा? सगी बहन को कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि बाप मौजूद है, ब्लॉक कर देगा इसको। सगी बहन को कुछ नहीं मिला। जब सगी बहन को नहीं मिला तो बाप शरीक बहनों को क्या मिलेगा? उसमें इतनी करीब का शख्स को नहीं मिल रहा है, तो ये थोड़े से दूर है, इनका तो सिर्फ बाप कॉमन है, इसके तो माँ और बाप दोनों कॉमन है, उसके बावजूद भी इसे कुछ नहीं मिला। तो फिर जो थोड़े से दूर चले गए रिश्ते में, यानी कि बाप शरीक बहन है, इनको कैसे मिलेगा? तो ये सब के सब ब्लॉक हो जाएंगे। उसके बाद अगले एग्जाम्पल में बाप है, माँ है, बेटी है, सगा भाई है और सगी बहन। बाप को 1/6 प्लस असबा। क्यों? क्योंकि मेल डिसेंडेंट कोई भी नहीं है, मेल फरे वारिस नहीं है, फीमेल में है लेकिन मेल में नहीं है। अगर मेल में नहीं है तो फिर बचा हुआ माल लेगा ये, अगर बचेगा तो। ओ माँ को कितना मिलेगा? देखें, एक से ज़्यादा भाई बहन है, दो हैं। देखें, सगी भाई और सगी बहन दो हैं, इसका मतलब माँ को 1/6 मिलेगा, 1/3 नहीं मिल सकता क्योंकि दो भाई बहन है हमारे। कंडीशन क्या है? एक ही होना चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए भाई बहन। उसके बाद बेटी है, बेटी को क्या देंगे? 1/2, क्योंकि अकेली है, ना ना कोई और मरने वाली का बेटा है, ना कोई और बेटी है इसके साथ में इसकी बहन, तो फिर इसको 1/2 मिलेगा। आख शकीक, सगा भाई और सगी बहन, ये इनको अब मौजूद है यहाँ पे, फादर ब्लॉक कर देगा, कुछ नहीं हासिल करने देगा, तो ये इनके शेयर्स हो गए, ठीक है। उसके बाद सारे तो नहीं कर सकते हम, यहाँ पे आ जाएं। देखें, सगी बहन है, उसके बाद सगे भाई की बेटी और बाप शरीक भाई की बेटी, ये दोनों तो वारिस बनते ही नहीं है, बेटियाँ। बचा, बची उख्त शकीका जिसको 1/2 दे दिया जाएगा, कंडीशंस फुलफिल हो गई हैं। उसके बाद ये एक्सरसाइज है अल उख्त लि अब के लिए, बाप शरीक बहन के लिए। मसलन जौजा है, वाइफ है और एक बाप शरीक बहन है। वाइफ को 1/4 क्योंकि फ़रे वारिस मौजूद नहीं है। उख्त लि अब को 1/2 क्योंकि सारी पांचों कंडीशन फुल हो गई। क्या थी पांच कंडीशन? नंबर 1, बाप दादा ना हो। नंबर 2, बेटा बेटी पोता पोती ना हो। नंबर 3, सगे भाई बहन मौजूद ना हो मरने वाले के, सी अकेली है, उख्त लि अब। तीन कंडीशन। चौथी कंडीशन, मरने वाली का या मरने वाले का कोई और बाप शरीक भाई मौजूद ना हो, वो भी नहीं है, अकेला प्रॉब्लम में, बस यही दो लोग हैं, ओके। और आखिरी कंडीशन इसमें हमने देख लिया कि मरने वाले के, और आखिरी कंडीशन ये है कि सिंगल हो,
इसकी और कोई बहन मौजूद ना हो। फुलफिल हो गई सारी कंडीशन, आधा दे दिया हमने। उसके बाद में देखें अख शकीक और उख्त ली अब, सगा भाई और बाप शरीक बहन। तो सगे भाई को तो, बाप शरीक बहन को पहले देखेंगे 1/2 की कंडीशन फुलफिल हो रही है नहीं हो रही है। कौन सी कंडीशन फेल हो गई? सगे भाई बहन मौजूद ना हो है, इसका मतलब ना 1/2 मिलेगा इनको, ना 2/3 मिल रहा है इनको, क्योंकि ये उख्त लिया, अब ये सगा भाई मौजूद है, इन्हें कुछ भी हासिल नहीं करने देगा, रोक देगा। उसके बाद उख्त शकीका है और उख्त लियाब है, ये दोनों फीमेल्स हैं, एक सगी बहन है और एक बाप शरीक बहन है। सगी बहन को 1/2 देंगे, बाप शरीक बहन को 1/6 देंगे, तकमीलतुस्सुलुसैन, और इस तरह से 2/3 पूरा हो जाएगा, 1/2 1/6। उसके बाद एक बेटी है और एक उख्त ली अब बाप शरीक बहन है, बेटी 1/2, बाप शरीक बहन असबा बन जाएगी, जो हम पढ़ेंगे। उख्त ली अब बेटी की मौजूदगी में असबा माल गैर बन जाती है। उसके बाद आपके पास है, ओके, शोहर की एक्सरसाइज है, पहले भी कर चुके हैं। यहाँ पे 1/4 मिलेगा शोहर, क्यों? बेटी मौजूद है, बेटी को कितना मिलेगा? 1/2, क्योंकि सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। उसके बाद शौहर है, एक पोता है और एक पोती है। तो पोता पोती, यहाँ पर ये पोती जो है अभी 1/2 या 2/3 नहीं लेगी, अपने भाई यानी कि दूसरे पोते, मरने वाले के दूसरे पोते के साथ मिल कर के असबा बनेंगे। असबा बन कर के ये 2:1 के रेशो में माल को बांट लेंगे। शौहर को हम कितना देंगे? 1/4, क्यों? फरे वारिस मौजूद है। उसके बाद जो बचा हुआ 3/4 है वो इनमें बढ़ जाएगा, दो दो हिस्से इसके, एक हिस्सा इसका, यानी 3 हिस्सों में बढ़ जाएगा। 1/4 बेटी का और 2/4 यानी 1/2 इस पोते का। उसके बाद जौज, ठीक है, ये अगला करते हैं जौजा का। जौजा है, सगी बहन है और चचा का बेटा। अब ये सगे चचा ही मान लो इसको, या कौन से कोई से भी चचा मान लो। तो जौजा जो है इसको 1/4, उख शकीका इसको 1/2, और इब्न आम यानी आम शकीक ही मान के चलेंगे, सगे चचा का बेटा, तो ये असबा बनता है माल गैर, असबा बिल गैर, या असबा बिनफ्सी ही, असबा बिनफ्सी ही। तो ये असबा बन के बाकी माल ले लेगा। ठीक है, उसके बाद जौजा है, चले यहाँ पे आए। जौजा है, बेटा है, बेटी है। जौजा बेटा बेटी के साथ आ रही है, मतलब 1/8, और ये बेटा बेटी मिल करके असबा बनेंगे, क्योंकि शर्तें फुलफिल नहीं हो रही है, ना 1/2 की ना 2/3 की। तो जब तक बेटा बेटी ये साथ हैं असबा बनेंगे और माल को आपस में बांट लेंगे। उसके बाद देखें आपके पास एक बीवी है, मरने वाले की एक बीवी है, एक पोता है और एक पड़ पोता है। देखें इससे नीचे के लेवल में, पोते से नीचे के लेवल में पड़ पोते का लेवल है। जौजा को तो 1/8 मिलेगा, क्योंकि फरे वारिस मौजूद है। इब्नो इब्न, ये असबा बन जाएगा और अपने से नीचे लेवल वाले को ब्लॉक कर देगा, ये हम पढ़ेंगे कवाइद हजब के। तो 1/8, उसके बाद ये असबा बन गया, 7/8 इस पोते ने ले लिया, और उसके बाद ये पड़ पोता जो है इसे कुछ नहीं मिलेगा। उसके बाद है बीवी और सगे भाई की बेटी। सगे भाई की बेटी वारिस ही नहीं होती है, बची बीवी, बीवी को 1/4 दे दिया जाएगा, क्योंकि फरे वारिस मौजूद नहीं है। तो हस्बैंड वाइफ के हिस्से सबसे आसान है, उसमें गलती नहीं होना चाहिए, जैसे हमने पहले भी कहा। उसके बाद चलें बेटियों के ताल्लुक से एक्सरसाइज है 2/3 की। दो बेटियां हैं और एक पोती है। देखें दो बेटियां मतलब इनको 2/3 दे दिया हमने, 2/3। अब ये जो पोती है, इससे पहले हमने पढ़ा था तकमीलतुस्सुलुसैन के तहत उसको 1/6 देते हैं, लेकिन यहाँ पर 2/3 पूरा कंज्यूम हो गया, इसे कुछ भी नहीं मिलेगा, महरूम हो जाएगी। बेटियों ने 2/3 आपस में बांट लिया, इसे कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, उसके बाद इनहेरिटेंस आने के बाद अगर ये दो बेटियों का दिल चाहे, कहें नहीं हम ये जो पोती है मरने वाली की, इसको भी कुछ दे दें हम, तो वो उनकी मर्जी है। उसके बाद देखें 4 बेटियां हैं और एक बेटा है। 4 बेटियां मतलब 2/3 मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि मरने वाली का बेटा मौजूद है, तो ना 1/2 इसको इनहेरिट करने देगा, ना 2/3। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों असबा बनेंगे, ये 4 मान लो, इसको 2 मान लो। पूरी प्रॉपर्टी के 6 हिस्से करो, एक एक हिस्सा 4 बेटियों में, 2 हिस्से बेटे में। उसके बाद देखें 5 बेटियां और एक बाप है। 5 बेटियां मतलब 2/3,
और बाप को 1/6 प्लस असबा। क्यों? क्योंकि मुअन्नस है, वारिस में, वारिसीन में मुअन्नस मौजूद है, तो फिर उस सूरत में बाप 1/6 भी लेता है और बचा हुआ माल भी लेता है अगर बचता है तो। उसके बाद जो है बड़े सिंपल हैं, आप कोशिश करेंगे ना तो ये चीज़ें आ जाए। देखें, दो बिनता इब्निन, बिनता इब्निन यानी दो पोतियाँ हैं और तीन बहनें हैं बाप शरीक, तीन बाप शरीक बहनें हैं। तो ये जो दो पोतियाँ हैं इनको तो हमने 2/3 दे दिया, क्योंकि एक से ज़्यादा हैं तो उनको हमने 2/3 दे दिया। अब ये बाप शरीक जो बहनें हैं, ये इनकी मौजूदगी में असबा बन जाएंगी, असबा माल गए, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। और बचा हुआ माल 1/3, ये तीनों बहनें आपस में एक एक हिस्सा बांट लेंगी, 1/9 1/9 1/9। उसके बाद चले तीन, देखें तीन पोतियां हैं, थ्री बनात इब्नुन, थ्री बनात इब्निन, थ्री बनाती इब्निन ये है। उसके बाद थ्री बनाती इब्निल इब्निन, ये पड़ पोती, तीन पड़ पोतियां भी हैं और एक पड़ पोता भी है। तो अब ये जो देखें तीन, ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। थ्री बनातुल इब्न, इनको मिलाएगा 2/3, 2/3 इनको मिल गया। उसके बाद हमारे पास है तीन पड़पोतियाँ, बनातु इबनी इब्निन, पड़पोतियाँ तीन और पड़पोते दो। देखें इब्ना इब्नी इब्निन, ये इब्ना दो की तरफ इशारा, वो इब्नानी था, नून गिर गया मुदाफ होने की वजह से, तो फिर उसको हमने उसको हमने दो, ये दो काउंट कर रहे हैं हम इनको, इब्ना दो हैं, वो इब्नानी, नून गिर गया है वो मुदाफ होने की वजह से। तो देखें दो पड़ पोते हैं और तीन पड़ पोतियाँ, तो ये तीन को तीन काउंट करो, ये दो को चार काउंट करो, तो ये कुल मिला के बचा हुआ जो माल है 1/3 वो इन 7 हिस्सों में बटेगा। अब ये ऐसे जो वारिस होते हैं इनको, एक तो वारिस वो होता है जिसे मनहूस वारिस कहा जाता है, यानी उसके होने की वजह से वो करता तो यह है कि ख़ुद तो हिस्सा पाता नहीं है, किसी दूसरे के हिस्से को भी या तो कम करवा देता है, पूरी तरह से उसके हिस्से को ख़त्म करवा देता है। ऐसा वारिस मनहूस कहलाता है। ये मनहूस नहीं है, ये वारिस तो बल्कि फ़ायदा पहुंचा दिया उसने इस पड़पोती को। क्यों? क्योंकि अगर ये भाई नहीं होता है, ये लड़का इसी लेवल में इसका भाई ना मौजूद होता, तो ये जो तीन बहनें इन्होंने तो 2/3 ले ही लिया था, ये जो पोतियां हैं तीन, इन्होंने 2/3 ले लिया था, तो तकमीलतुस्सुलुसैन की ज़रूरत ही नहीं थी, तो ये तो महरूम हो जाती। अगर ये लड़के दो लड़के ना होते तो ये बहनें तो महरूम हो जाती, इन्हें कुछ नहीं मिलता। लेकिन अपने इस भाई की वजह से अब ये इसके इनके इनके इन भाई ने, जो कि पड़ पोता है उसी लेवल में, उसने इनको भी असबा बना लिया अपने साथ, मतलब अब इनको कुछ ना कुछ मिलेगा, महरूम नहीं होंगे। तो ये मनहूस नहीं है वारिस, ये वारिस मनहूस नहीं है। यार कहा जाता है वो मनहूस का मतलब, वो तो एक टर्मिनोलॉजी है, ना समझेंगे इंसान अल्लाह की मखलूक किसी को क्यों मनहूस बना दिया। लेकिन वो मनहूस इसलिए है क्योंकि वो खुद तो आया ना, खुद कुछ उसने हासिल किया और दूसरे के शेर को भी उसने नुकसान पहुंचा दिया, तो इसलिए उसको मनहूस कहा है। अब ये तीन सगी बहनें और दो बाप शरीक बहनें, तीन सगी बहनें दो बाप शरीक बहनें, तो ये तीन सगी बहनें, इनको 2/3 मिल गया। और ये जो देखें यहाँ पर, इस इनको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि तकमीलतुस्सुलुसैन की ज़रूरत ही नहीं है। ये जो तीन बहनें हैं, सगी बहनें, इन्होंने 2/3 ले लिया। अब ये दो जो बहनें हैं इनको कुछ नहीं मिलेगा, ज़ीरो। हाँ, लेकिन इनके साथ अगर एक सगा भाई मौजूद हो जाता, एक भी सगा भाई होता, तो ये अपने उस सगे भाई के साथ मिलकर के असबा बनती और असबा बन के 1/3 को बांट लेती हैं उस बात, लेकिन अभी कुछ भी नहीं मिलेगा इनको। उसके बाद हमारे पास ज़ौजा है और तीन सगी बहनें हैं। ज़ौजा को 1/4, क्योंकि फ़रे वारिस मौजूद नहीं है, और तीन सगी बहनों को 2/3। ठीक है, तो इस तरह से माल इनमें बढ़ जाएगा, जो बचेगा वो वापस इन तीन बहनों में लौट करके आएगा। उसके बाद एक माँ है और दो सगी बहनें हैं। देखें माँ, माँ को कितना मिलेगा? 1/6। क्यों? क्योंकि एक से ज़्यादा भाई बहन, यानी एक से ज़्यादा बहनें मौजूद हैं, दो, तो माँ को 1/6 मिलेगा, इन दोनों को 2/3। ठीक है, तो इस तरह से आपको अभी बहुत ज़्यादा हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते, लेकिन तकरीबन काफ़ी सारी एक्सरसाइज हमने की हैं। तकमीलतुस्सुलुसैन की है, और हमने जो है बेटियों की, बहनों की, अलग अलग किस्म की वो सारी एक्सरसाइजेज भी हमने की हैं। एक एक्सरसाइज जो नहीं की है वो उख्तल उम की है। अगर वो देखें, यानी माँ शरीक भाई और बहन की एक्सरसाइज अगर आ जाए तो एक आध उसकी, हाँ ये आ गए। माँ शरीक भाई बहनों की एक्सरसाइज एक कर लेते हैं हम। शौहर, एक माँ शरीक भाई, दूसरा, यानी दो माँ शरीक भाई हैं और एक शौहर है। शौहर को तो 1/2 दे दें,
क्योंकि फ़र्ज़ वारिस मौजूद नहीं है। और ये जो माँ शरीक भाई बहन होते हैं, अगर अकेला होगा तो 1/6 मिलेगा, और अगर एक से ज़्यादा होंगे तो 1/3 में डिवाइड करेंगे वो। तो यहाँ पे एक से ज़्यादा है तो इनको 1/3 दे देंगे, क्योंकि इनकी कंडीशंस फुलफ़िल हो रही हैं। कंडीशंस क्या हैं? बाप दादा ना हो मुज़क्कर, इसी तरह से बेटा बेटी पोता पोती ना हो। अगर ये कंडीशंस फुलफ़िल होती हैं तो फिर इसके बाद में इनको, अगर ये एक से ज़्यादा है तो 1/3 इनको दे दिया जाएगा। उसके बाद देखें, ज़ौज है, आखली उम है और उख्तली उम है। ज़ौज को 1/2, और ये दोनों जो हैं देखें, अगरचे के मेल फीमेल भी हैं, लेकिन 2:1 का कायदा इनमें अप्लाई नहीं होता है। माँ शरीक भाई बहनों में 2:1 का कायदा अप्लाई नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने इनके शेयर को डिफ़ाइन कर दिया कुरान में, 1/3 और 1/6। एक से ज़्यादा होंगे तो 1/3, और अकेले होंगे तो 1/6। तो यहाँ पे एक से ज़्यादा है, दोनों मिल कर के 1/3 में डिवाइड कर लेंगे आपस में। सेम चीज़ यहाँ है, ज़ौजा है, सगा भाई सगी बहन, ज़ौजा को 1/4, और ये दोनों जो हैं बाँट लेंगे 1/3 को आपस में, क्योंकि एक से ज़्यादा है। इसी तरह से यहाँ पे माँ है और 3 माँ शरीक भाई हैं, 3 माँ शरीक भाई इख्वाली तो माँ को कितना मिलेगा? माँ को 1/6 मिलेगा। क्यों? क्योंकि एक से ज़्यादा भाई मौजूद हैं यहाँ पे, और इन 3 भाइयों को 1/3 मिलेगा। ठीक है। एक और कर लेते हैं आखिरी, ये बीवी है, उसके बाद में पोती है, पोता है, और 4, देखें 4 जो हैं ये माँ शरीक भाई हैं। तो ज़ौजा को अभी 1/8 मिलेगा। क्यों? फ़र्ज़ वारिस मौजूद है, देखें पोती है और पोता है। अब ये पोती को ना 1/2 मिलेगा ना 1/3 मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसका एक भाई यहाँ मौजूद है, तो वो अपने भाई के साथ मिल कर के असबा बिल गैर बन जाएगी, असबा बिल गैर एबीजी। और 4 इख्वाली इनको कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि फ़र्ज़ वारिस जो है ये पोता भी है और पोती भी है, ये दोनों इनको ब्लॉक कर देंगे। ये कि बहुत मिस्कीन है, ये बड़े गरीब होते हैं, इनको ज़रा सा कहीं कोई आया तो वो इनको ब्लॉक कर देता है, इनके हाथ कुछ नहीं लगता। ठीक है। तो ये कुछ एक्सरसाइजेस थी जो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ इसको कर लिया जाए, ताकि थोड़ी सी मजबूती पैदा हो। क्योंकि इसमें क्या है, जैसा मैंने पहले भी कहा है कि एग्ज़ाम्पल सॉल्व करना पड़ते हैं। बग़ैर एग्ज़ाम्पल सॉल्व किए आप मीरास में परफेक्शन हासिल नहीं कर सकते। तो मैं क्या करूँगा, कोशिश करूँगा कि ये जो पेजेस हैं, ये जो बुक के, वो मैं शेयर करूँ, ताकि आप इसको हल करने की कोशिश करें। इसको हल करने की कोशिश करें, जब अपने हाथ से पेन पेपर लेकर के उसको हल करने बैठेंगे, थोड़ी बहुत गलतियां होंगी, पेंसिल से करें उसको, ताकि मिटाया जा सके। और अगर चाहिए तो मुझको भेज सकते हैं सॉल्व करने के बाद, ताकि मैं उसको चेक कर लूँ, और कहीं गलती हो तो बता दूँ। तो इंशाल्लाह प्रैक्टिस कर लिए, शेयर सही सही दे दिया तो कैलकुलेशन तो बहुत इजी होता है। जो हो सकता है कि आगे आएगा तब हम पढ़ लेंगे उसको। तो अभी सिर्फ शेयर देना सीखें, और मैं इसकी जो फ़ाइल है ये, इसको मैं इसमें एक्सरसाइजेस को शेयर करने की कोशिश करता हूँ ग्रुप में, उसको हल करें अपने हाथ से। ठीक है भाई। तो कोई सवाल है, कुछ पूछना है तो पूछ लें, कोई सवाल हो तो पूछ लें, जो बात नहीं समझ में आई हो। आमीन वफ़ीक। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई सवाल नहीं है? और जो एरिया आपने तो वहीं पे कोई जवाब ही नहीं दिए। यहाँ पे तो किसी वही आप ही ने जवाब नहीं दिए, बाकी सभी ने जवाब दिए। आपको समझ में आया है सब? मैथ्स नहीं आता तो मैथ तो हमें ज़्यादा अभी करना भी नहीं है ना। मैथ्स नहीं आता तो कोई मसला ही नहीं है। कैलकुलेशन तो हम कर ही नहीं रहे हैं अभी, प्लस माइनस भी नहीं कर रहे हैं अभी, तो हम सिर्फ शेयर्स दे रहे हैं। तो शेयर्स तो दें अभी आप, मैथ्स नहीं करना है हमने। मैथ्स का खौफ वैसे निकालना पड़ेगा दिल से, लेकिन मैथ्स करना नहीं है अभी हमको, कुछ भी नहीं करना, प्लस माइनस भी नहीं करना अभी हमको। सिर्फ शेयर्स देना है, सही सही जो शेयर्स अल्लाह ने अपनी किताब में बयान किए हैं
उतने तो हम दे सकते हैं ना भाई, शेयर्स तो हम दे सकते हैं। उसमें मैथ्स कहाँ है, शेयर्स में तो कोई मैथ्स नहीं है, वो सिर्फ शेयर्स देना है। तो वो सही सही दे दें आप, बाद में कैलकुलेशन तो हम किसी और से करवा लेंगे। कैलकुलेशन आप मत करना, आप किसी और से करवा लेंगे। और लेकिन कैलकुलेशन भी आ जाएगा इंशाल्लाह, प्लस माइनस ही करना है। प्लस माइनस तो कर सकते हैं ना भाई, पैसे तो गिनते हैं ना आप, कितने आए, बहन से आए, भाई से आए, वालिद से आए, शौहर से आए, कितने दिए बेटों को बेटियों को, वो तो आप गिन लेते हैं इतना, तो बस फिर वही तो कैलकुलेशन है, और क्या है। प्लस माइनस ही करना है, वो आसानी से पैसे की चीज़ें हम आसानी से कर लेते हैं, तो दिक्कत नहीं आएगी, बड़ी तेज़ी से करेंगे आप इंशाल्लाह। चलें फिर, अगर कोई सवाल नहीं है तो इसको क्लोज़ करते हैं हम इंशाल्लाह। उम्मीद करते हैं कि इस एक्सरसाइज के बाद शायद बुक के फॉर्म में जो शेयर करेंगे उसमें, हाँ बिल्कुल उसमें करें, मैं ये इसकी पीडीएफ शेयर करूँगा। पेंसिल से करें उसमें, क्योंकि फिर गलत होगा तो मिटाने में फिर मसला होगा ना, प्रिंट अगर निकालेंगे उसकी तो बार बार प्रिंट तो नहीं कर सकते। आमीन भैया की बारकल्लाहु फ़ीकुम, अल्लाह आप सबको बरकत दे, लंबी उम्र दे, नफ़ा बख्श इल्म दे, और इस इल्म को अपनी ज़िंदगी में हम इम्प्लीमेंट करें, अपने ख़ानदान में, रिश्तेदारों में, दोस्त अहबाब में इसको इम्प्लीमेंट करवाएं, क्योंकि ये इस पे इम्प्लीमेंटेशन होता नहीं है। पढ़ तो लिया जाता है, इम्प्लीमेंटेशन इस पे नहीं होता। इसको इम्प्लीमेंट करवाना है, बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। चलें ठीक है, मैं शेयर करने की कोशिश करूँगा, आज तो नहीं। इसकी रिकॉर्डिंग भी मैं कोशिश करूँगा अपलोड करने की, ताकि अगर देखना चाहें तो आप बाद में इंशाअल्लाह देख सकते हैं। चलिए जी, सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम।